ڈاکٹر شفیق احمد امینی صاحب آپ نے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلی آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائد سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلکے نقشوی نوی نشت حغی زلکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زلہ ایمان روڑی خوبستان عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اوے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ عشق دا ذائقہ ذوق والا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس تک لیا اوہی جان ڈائی اور ہر ایک نکت پر کھوندی کوئی لکت ایک پہچان ڈائی والد 1 سال پہلے شہید ہو اور بچہ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے یہاں پر قلم توڑتے ہوئے کہا یہ جو عشق ہے یہ جو عشق کی کیفیات ہے یہ جو حضور کے لیے مر مٹنے کا یہ جو جذبہ ہے مسلمان کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے تو پوری دنیا سے ٹکر لیتے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ آپ نے کہا جب تک یہ روح موجود ہے تو ابھی والد کا غم بھی تازہ، لیکن پھر بھی پورا خاندان کہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ تو ایک عامل شہید تھا، ہم تو ہر لحظہ پورا خاندان آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ یہی ہے وہ جذبہ عشق رضے کا ذوق والا، جس چک لیا ہوئی جان دائی، ہر ایک نوکد پر کھوندی کوئی لگت ایک پہچان دائی، اور ہمت ہاری آدھا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، اور عالم شام عشق دا کی دسا سمرہ دین اسلام ایمان دائی۔ آج اس شہید ناموس رسالت آپ کے سرزمین پر اور شرکپور شریف کے اس مقدس سرزمین پر میں صرف ایک بات آپ کے گوشگزار کروں۔ ہمارے شاہ صاحب قبلہ، ہمارے دلوں کے دھڑکن انتہائی قریب حضرت سید السادات سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم وفیضاتہم علینا، اور اکابرین قائدین تشریف فرما ہے۔ موسم کی حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب اس دین متین کے خلاف عالم کفر نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا، مسلمانوں کے فکر پر بھی حملہ کیا، اس کی سوچ اور عقیدے پر بھی حملہ کیا، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر ان پر نئے نئے اپنے حربے آزمائے گئے، اپنے انہوں نے اسلحے استعمال کیے، ایٹمی ہتھیار استعمال کیے، عراق سے لے کر شام، یمن، افغانستان، ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن کسی بھی جگہ سے مسلمانوں کے لیے توانا آواز نہیں ہوتا کہ جس نے عالم کفر کو للکار کر کہا ہو کہ آ جاؤ، اسلام کی اصل روح ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ادھر مسلمان شہید ہو رہے تھے، ادھر سے صدا بلند ہو رہی تھی کہ نہیں نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، مگر ایک مرد کلندر آپ کے لاہور مسجد رحمت للعالمین سے ان کی وہ غیرت والی آواز گونجی، اور آپ نے فرمایا ہاں اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کا خون یوں بہایا جائے تو پھر اسلام نکل کر میدان میں غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم نے اپنے اسلاف کے تذکرے سنے، ہم نے سنا کہ کس طرح میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام حضور کے سامنے کس انداز سے شہید ہوتے رہے، کس انداز سے حضور کا دفاع کرتے رہے۔ علامہ حلبی نے لکھا کہ جب ہجرت کی رات میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، شاید جنہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ رات کو آ جائے اور وہ میرے بستر پر مجھے سمجھ کر شاید تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ جائے اور تمہیں شہید کرے۔ اگر وہ اس ارادے سے آ جائے تو اب تمہاری مرضی کیا ہے، سونا ہے ادھر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو جواب ارشاد فرمایا، قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے مینار نور ہے، قیامت تک جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے محبت قدم بڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مینار نور ہے۔ جہاں یہ ہے علی والے کہ جب حضور کے عزت آبرو کی بات ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ کسی اور جگہ رات گزاروں گا، یا رسول اللہ سونا تو ضروری نہیں ہے، میں جاگ کے رات گزاروں گا۔ جب وہ آ جائے تو میں کہوں گا کہ حضور تو تشریف لے کے گئے ہیں، میں تو علی ہوں، میں ادھر رات کیوں ادھر، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ادھر سو جاؤں، یہ تو رات جاگ کے بھی گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ شاید وہ آ جائے تو اس کا جواب یہ تھا، واللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا
इल्ला लिखिदमतिक, या रसूल अल्लाह मैं इस पर राजी हूँ कि मेरी रूह आपकी रूह की हिफाजत करे, मेरी जान आपकी जान की हिफाजत करे। और या रसूल अल्लाह ये जिंदगी मैंने अपने लिए नहीं, ये तो मैंने आपके लिए मांगी है, तो कर तेरे नाम पे जान भेदा, न बस एक जहां तो जहां भेदा, और तो जहां से भी नहीं जी बड़ा करूं क्या करोड़ जहां नहीं। तमाम अहबाब एक आवाज शरकपुर शरीफ की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने यह हद करना है कि जो हमने असलाफ का, कि जो हमने सुने और जो हमने असलाफ के बारे में पढ़ा कि उन्होंने जब भी हुजूर के दीन की बात आई कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया, जब भी हुजूर के इज्जत आबरू की बात आई कभी हिकमत के नाम पर अपने घरों में नहीं बैठे रहे, जब भी इस्लाम के लिए निकलने की बारी आई तो आप ये कहकर ना डरे कि नहीं आगे तो मौत होगी, आगे तो बड़ी मुश्किलात होंगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने कभी ये नहीं कहा अगर 305 निकलने के लिए थे और सिर्फ 8 तलवारें थी और मेरे करीम आका ने पूछा, सवाल किया सहाबा निकलना चाहिए, बदर में 1000 मुसल्ला आ चुके हैं, निकलना चाहिए या नहीं, किसी ने ये नहीं कहा, बल्कि आगे बढ़कर फरमाया या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं सिल हिवाला मन शेता वक्ता हिवाला मन शेता सालिम मन शेता आद मन शेता व खुद मिन अम्वालिना मा शेता, या रसूल अल्लाह अपने पल्ले कुछ नहीं, सब कुछ तो आप ही का है। जिससे कहेंगे दुश्मनी करो दुश्मनी करेंगे, जिससे फरमाएंगे दोस्ती करो दोस्ती करेंगे। या रसूल अल्लाह बदर तो सामने है, आप हुक्म फरमाए, आपके हुक्म पर हम कैसे किसरा सीधी जंग छेड़ देंगे। जब वो हुजूर के दीन के लिए निकले उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले हाथों में तलवारें जरूरी है, उन्होंने ये नहीं कहा माहौल को देके 305 बेसर सामानी के हालत में 1000 का मुकाबला कैसे करेगा, नहीं नहीं, फरमाया या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाओ, बदर सामने है, हम कैसर किसरा सीधी जंग छेड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने ये नहीं कहा बल्कि मैदान में निकले तो बदर को पहुंचे, बदर में करीम आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों देखो वो फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंचे। जो भी बंदा हुजूर के दीन के लिए इखलास के साथ मैदान में निकले फिर अल्लाह करीम उनकी मदद जरूर फरमाता है। दूर मत जाइए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने बेसर सामानी की हालत में, बेसर सामानी की हालत में किस तरह हुजूर के दीन पर पहरा दिया, ये तो तारीख दान लिख कर भी यहाँ कलम तोड़ेगा कि किस तरह हो सकता है कि सामने से जुल्म जबर हो, सामने से पूरी रियासती कुव्वत अपनी जुल्म जबर पे उतर आए और इधर से सिर्फ और सिर्फ निहत्ते हुए सामने सीने हो। कभी हो नहीं सकता कि सीनों का मुकाबला, गोलियों का मुकाबला सीनों से भी हो जाए। बंदा कहे कम अज कम मेरे हाथ में तो क्लाशिनकोव हो, मेरे हाथ में तो कोई वो आला हो जिससे मैं दुश्मन को मार सकूं। यहाँ तो हमारा मकसद भी नहीं था उनको मारना, यहाँ तो दुश्मन भी ये नहीं था कि हम ये समझे कि इनसे जिहाद करना और इनसे जंग करना हमारा मकसद है। यहाँ तो हम निहत्ते थे, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ सीने मौजूद थे, मगर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा, चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि किस तरह हुजूर के गुलाम उन गोलियों का मुकाबला अपने सीनों से कर रहे हैं। और आज इन्होंने किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस फैज से वल्लाहि अज़ीम ये करके दिखाया कि इन्होंने मीलादुन नबी में रस्मन ये नारा नहीं लगाया था कि गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है। हाँ, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इज्जत और नामूस पर मर मिटने की बात आई तो फिर इन्होंने गोलियों के सामने सीने करके उसी वक्त जालिम जाबिर के सामने मैदान अमन में निकल कर फरमाया इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत आलम कुफर से सिर्फ एक आलम कुफर को सिर्फ एक बात से परेशानी थी। आप मेरी बात सुन रहे हैं? तवज्जो से सुनिएगा। आलम कुफर को सिर्फ एक बात से परेशानी थी। उन्होंने कहा इस कौम से हमें और कोई खतरा नहीं है, इनकी ज्यादा नमाजों से या उनकी जो है ना ज़कात देने से हमें वो खतरा नहीं है जो इनके दिल में उनके महबूब बसते हैं उस ताल्लुक से हमें जितना खतरा है। वो अपने महबूब के कदम मुबारक से लगी हुई खाक पर जब पूरे कायनात को कुर्बान करने के लिए उनका ये जज्बा हो, तब ये हमें खतरा है कि एक बंदा जब हुजूर के इज़्ज़त अबरू के लिए मैदान में आए अपने करीम आका के साथ, तो फिर यकीन करे फिर उस वो बंदा तो एक हो लेकिन वो पूरी दुनिया और पूरी आलम कुफर को परेशान करके रख दे। वो एक मुमताज कादरी हो लेकिन उसके 27 गोलियों की तड़तड़ाहट पूरी दुनिया में फिर सुनी जा सके। वो एक व्हील चेयर पर बैठने वाला वो बाबा जो लाहौर से चले और अभी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, मैं खुद गवाह हूँ इसका, मैं खुद गवाह हूँ। अभी हम गुजर खान के करीब थे, मुझे बाबा जी ने फरमाया मैंने आ जाओ, मैं आ गया, कह रहा है आगे निकल जाओ, जाके तुम्हारे लिए जो है ना तुम जाके उन्होंने सवाल जवाब भेजा है कि आप जाकर उनसे मुज़ाकरात करो। जब मैं उधर पहुंचा ये सारे वज़रा मौजूद थे, वज़ीर ख़ारिजा खुद मौजूद था, आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था, ये ऐसा होगा हालैंड वालों के साथ, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, इसलिए आप आराम से चले जाए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अभी बातें कर रहे थे, बाहर से बंदा आया और उनके ज़ुबान में कुछ उन्होंने कुछ कलमात कहे, वो बाहर गया। 10 मिनट बाद जब वज़ीर ख़ारिजा अंदर आया मुस्कुरा रहा था, कहा मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कह रहा है कि हालैंड के तरफ से सरकारी तौर पर ऐलान हुआ कि उन्होंने जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों के इशाअत का ऐलान किया था वो उन्होंने वापस लिया है कि हमारे हालैंड के कौम को, हमारे अवाम को खतरा है कि मुसलमानों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और हमें खतरा हो रहा है कि हम गैर महफूज हो जाएंगे। मैंने कहा आखिर वो कौन सी ताकत है? एक व्हील चेयर वाले बाबा अभी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचा मगर उसकी गैरत की गूंज हालैंड तक सुनाई दे रही है। कलंदर लाहौरी की रूह तड़प उठी, फरमाया कुव्वते सुल्तान अमीर अज़ला इलाह, हैबते मर्दे फकीर अज़ला इलाह। हमारे असलाफ ने भी हमें गैरत का दर्स दिया था। अंग्रेज के कैद में रहकर इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अंग्रेज के कैद में रहकर भी जब आपके हड्डियां मुबारक भी बुसीदा हो गई और वो जहरीला पानी आपको दिया जा रहा था जिससे आपका सेहत गिर चुका था, अंग्रेज ने कहा अपना ये फतवा वापस कर दो। उसी वक्त भी आप कैद बामुशक्कत वो बड़े बड़े टोकरे अपने सर पे उठाए हुए फरमा रहे थे फदई तो मोहम्मदन खैर अल बराया। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मेरा सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल जिन्होंने वक्त के 3 जालिमों का मुकाबला किया और जब वो एक एक दुर्रा उनको मार रहे थे तो आगे से इमाम फरमाते जा रहे थे अल कुरान कलामुल्लाहि गैर मखलूकिन। हर दुर्रे के साथ आपका ये सदा बुलंद होता रहा। हजरत मौलाना हसरत मोहानी सैयद फजल हुसैन अल मारूफ मौलाना हसरत मोहानी अंग्रेज के कैद में जवान गए थे, 27 साल कैद बामुशक्कत गुजारा और यूं खमीद कमर हो गए, लेकिन अंग्रेज ने कहा बस कर मौलाना, आखिर तुम क्या चाहते हो, बस करो, इस मिशन से पीछे हट जाओ। आपने खत लिखा और उस खत में लिखा शाहों की तकब्बुर से भी तब कर न रहा मैं,
आखिर किस बारगाह खास का गदा हूँ मैं, मुझे क्या परवाह, मैं अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन के लिए मैदान में हूँ। तुम चाहो जुल्म की इंतहा कर दो, हमारे तरफ से गिला शिकवा भी नहीं होगा। आपने फरमाया है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी तुम कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद दीन आया, दीन आया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। वल्लाह हमने उनके किस्से तो सुने थे, लेकिन हमने देखा नहीं था, लेकिन अल्लाह करीम ने फिर हमारे ऊपर करम किया, हमने उनकी गैरत और हमीयत का अक्स हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन में देखा। जहाँ आपने पूरी दुनिया से टक्कर ली, जहाँ आपने दुनिया के हर गुस्ताख को ललकारा, जहाँ आपने हर जालिम और जाबिर के जुल्म जबर को ललकारा, और यूं आप मैदान में निकले कि वल्लाह पूरी दुनिया हैरान हो गई कि आखिर ये कौन सी ताकत है इस बाबे के साथ, कि उस ताकत के बलबूते पर ये पूरे कौम भी उनके साथ खड़ी हो गई। आप हमेशा फरमाया करते थे कि कौम अब भी दीन के पीछे चलने के लिए तैयार है, मगर उनको कोई कायद तो मिल जाए जो आगे उनका सौदा ना करे, जो आगे उनके नजरियात का सौदा ना करे, उनके अफकार का सौदा ना करे, और आगे उनको भेजे ना, तो ये कौम अब भी मर मिटने के लिए तैयार है। खुदा की कसम, आप वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन्होंने आपकी आवाज पर लब्बैक कहा, दिलो जान से कहा, हर वक्त कहा, ये नहीं कहा कि नहीं ये मौका नहीं है, अभी तो इसी वक्त ये मुश्किलात गुजरी हैं, अभी तो हमारे सामने बड़े मसाइल है, अभी तो पुराने मुकद्दमात भी चल रहे हैं, अभी तो फोर्थ शेड्यूल में नए नाम डाले जा रहे हैं, अभी हम क्या करें, थोड़े पीछे हट जाते हैं, फिर देखते हैं वक्त का तकाजा है। नहीं वल्लाह किसी ने भी ये नहीं कहा। आपने उम्मत को वो कौम और वो गैरत फिर से दिया कि जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों को किसी ने खबर दी कि आपके खिलाफ तो कुफार मक्का सारे फिर से जमा हो चुके हैं और अब वो फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उसी वक्त सब ने बैक जुबान कहा, सब ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हाँ, उनके पास और ताकतें होगी, वो भरपूर तैयारी करे, परवाह नहीं, उनके साथ जो है वो ताकत मेरे रब की नहीं है, तो जो भी दुनिया की ताकतें हैं वो तो उनके सामने रेस बरेस है। हमारे लिए जो ताकत है वो रब्बिल अज़ाल की ताईद और मदद है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है। खुदा की कसम, आपने कौम को फिर से वो गैरत दिया, और कौम ने ये नहीं कहा कि एक शहीद है, ये शहीद हो गया, अब उनके बेटों को कहे कि नहीं तुम तो बड़ी कीमती हो, तुम घर अंदर बैठ जाओ। मैं अभी इस बच्चे की ये जज्बात देख रहा था, खुदा की कसम मैं रश कर रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक बंदा जाए तो लोग उस तरफ जाने से भी गुरेज करते हैं, नहीं हमें वो फिर ऐसा ना हो कि मेरा बेटा उधर फिर से कोई ये मसला ना हो जाए। लेकिन पूरा खानदान फिर भी गैरत और हमीयत के साथ खड़ा रहे। आप यकीन करें, ये जज्बा अगर इस उम्मत में बेदार हो चुका है तो लाखों करोड़ों सलाम उस मर्द कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र अनवर पर। आपने फरमाया मौत ने तो आना है, इससे जो है ना, ये तो आज तो सर्दी नहीं, आज तो हम सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको उसी दिन उसी रात की सर्दी याद आ रही हो कि जब हम फैजाबाद पे थे और बारिश बरस रहा था, सरता पाँव तमाम के तमाम, कोई जगह ऐसे नहीं थी जहाँ पे बारिश ना पड़ी हो, और उस सर्दी में फिर जो रात को जुल्म हुआ, सुबह को जब अमीरुल मुजाहिदीन पहुंचे तो आपका चेहरा मुबारक बिल्कुल मुतगय्यर था। मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ है आपको? मुझे कहा ये देखिए
मुझे अब भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मुझे अब भी बहुत ज्यादा बुखार है, वाकई बहुत सख्त तकलीफ थी आपको। मैंने कहा हुजूर फिर क्यों तशरीफ ले आए, आपके बच्चे मौजूद है, आपके औलाद मौजूद है, आप क्यों तशरीफ ले आए? फरमाया नहीं, ये जान तो है ये रसूलुल्लाह के लिए। क्या बात करते हो, खुदा की कसम जब इस अंदाज से बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए कि आप अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी फ्रांस के गुस्ताखों तक उनको ललकारे और पूरी दुनिया में हुजूर की इज्जत और नामूस का पैगाम पहुंचाए, और इस अंदाज से आप इस दुनिया से रुखसत हो तो मौत ने तो आना है। हर किसी को ब्लड प्रेशर से, किसी को शुगर से, किसी को किसी हादसा से, किसी को किसी वजह से, लेकिन उस मौत का मजा ही जुदा है कि जब आप अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी अपनी सेहत का परवाह किए बगैर आप क्या करें, हुजूर के इज्जत पर पहरा दे, हुजूर के नामूस पर पहरा दे, तो फिर खुद फरमा देते कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज आए मेरा फकीर आया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस मिशन के साथ इंशाअल्लाह तादा में मर्ग हम ये अज़म करेंगे कि इंशाअल्लाह दिल जान से खड़े रहेंगे। हर लम्हा हर वक़्त इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान में होंगे। किसी भी लम्हा किसी भी वक़्त कोई भी जालिम का जुल्म, कोई भी जाबिर का जबर हमें इस निज़ाम से पीछे नहीं हटा सकता। अब ये वो नशा है, अब ये वो नशा है जब हमारे किसी को वो कोई कभी किसी जेल मुंतकिल करते थे, कभी किसी जेल, उन पर सख्ती करो ताकि ये नशा उतर जाए। मैंने कहा बदबख्तो ये नशा तो लहद में भी नहीं उतरेगा, ये नशा तो उतरने वाला नहीं है, ये तो हम साथ इंशाअल्लाह कब्र में भी लेके जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना वफा करके जाएंगे कि हुजूर का सामना कर सके। आ जाओ, आज मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान अमल में है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर जालिम और जुल्म के जुल्म जबर का मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि हमने इस मैदान में इखलास से कदम रखा, क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके नूरी नज़र लख्ती जिगर क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह इस मैदान में इस उम्मत की नुमाइंदगी सही कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि आप दिलो जान से हमारा साथ दें। और अगर आप समझते हैं कि हुजूर के नाम पर है, वरना मुझे शरफपुर शरीफ में कौन जानता था, शफीक कौन है, कहाँ चार सत्ता, कहाँ शरफपुर शरीफ, मगर आज यहाँ पर लोग हमें मोहब्बत देते हैं, हाथ चूमते हैं हुजूर की वजह से। तो जब तो जिनकी वजह से, जिनके दम कदम से ये सब इज्जतें हैं, आइए हम अहद करते हैं कि उनकी कदम की खाक मुबारक पर इंशाअल्लाह कुर्बान भी करेंगे। और ये अज़म करते हैं कि इम्तिहान तो कभी कभी है, ये इम्तिहान तो कभी कभार होते हैं, और ये तो इस्लाम में जब इम्तिहानात आते हैं तो इसका मजीद हुस्न बढ़ जाता है और बंदे को याद आ जाता है कि हमारे असलाफ ने भी कुर्बानियाँ दी। लेकिन याद रखे हुजूर की तरफ से मेहरबानियाँ हर वक्त है, ये फूल हर वक्त फेंके जा रहे हैं, ये हाथ हर वक्त लोग चूम रहे हैं। लुत्फ़े सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह, और इजवी सजन वाह, उजवी सजन वाह। इसलिए मैं इस पर इख्तिताम करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपने हर मैदान में लब्बैक का साथ देना है। आने वाले बल्दियात में इंशाअल्लाह ताला लब्बैक को फुल सपोर्ट करना है, अपने कायदीन के साथ मुकम्मल राब्ते में रहना है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह लोग कहते हैं पंजाब लब्बैक वालों का है, तो इंशाअल्लाह आपने करके दिखाना है। फिर लाहौर, फिर ये इलाके जहाँ बाबा जी ने सुबह शाम अपना टाइम दिया, आपने इंशाअल्लाह ताला ये दिखाना है कि हम इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए दिल जान से लब्बैक के साथ है। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, और परे खाक हो जाए जल।